Hello students, this is the fourth video of PERT and CPM. In this video, I am going to explain you what are the floats. Okay, we have already discussed that the longest time path through the network where any overrun would affect the project completion date is the critical path. We have already discussed in the last video what is critical path. Critical path is the longest path of any project network. So if we overrun any activity there, our project completion date will be extended. ओके तो जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके पास कोई भी स्पेयर टाइम नहीं होता है. अगर आपने एक्स्ट्रा थोड़ा सा भी टाइम लिया, एक भी दिन एक्सीड किया, आपका जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगा. सो इससे क्या पता चलता है, जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके पास स्पेयर टाइम होता है एंड दैट स्पेयर टाइम इज कॉल्ड फ्लोट. सो I have written here, in other words, critical activities have no spare time. However, in case of non-critical activities, certain amount of spare time is available and this spare time is called float. There are three types of floats: total float, free float and independent float. First of all, what is total float? It is the amount of time that the completion time of an activity can be delayed without affecting the project completion time. Suppose there is an activity A. If activity A has used 2, 3, 4, 5 days, any 2, 3, 4 days extra time, and एक्स्ट्रा टाइम यूज़ करने के बाद भी अगर हमारा प्रोजेक्ट अपने टाइम पे ख़त्म हो जाता है, अपनी प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट पे ख़त्म हो जाता है, तो जो एक्स्ट्रा टाइम उस एक्टिविटी ने यूज़ किया है, दैट टाइम for that activity is called total float. So it is the amount of time that the completion time of activity can be delayed without affecting the project completion time. तो project completion time पे कोई effect नहीं आएगा, आपने extra days अगर use भी किए हैं तो वो जो extra time उस activity के पास है, उस time को हम कहते हैं total float. Total float calculate करने के लिए formula है LCJ minus ESI minus DIJ. Now how to calculate LCJ? What is LCJ? Latest completion time. What is ES? Earliest start time. And how to calculate them? I have already explained in my last video. And DIJ stands for duration. Activities with zero total float are known as critical activities. What does this mean? कि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के पास कभी भी टोटल फ्लोट होगा ही नहीं, हमेशा टोटल फ्लोट ज़ीरो ही होगा. तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का टोटल फ्लोट हमेशा क्या आएगा? ज़ीरो, बिकॉज उनके पास कोई स्पेयर टाइम नहीं है. अगर क्रिटिकल एक्टिविटी पे एक भी दिन एक्स्ट्रा लगा तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम एक्सटेंड होना ही है. और टोटल फ्लोट क्या कहता है? ऐसा एक्स्ट्रा टाइम जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट एक्सटेंड नहीं हो, उस टाइम को हम टोटल फ्लोट कहते हैं. Now the next is free float. It is the amount of time that the activity completion time can be delayed without affecting the earliest start time of immediate successor activity in the network. For example, there are two activities A and B. Activity B is preceded by activity A. Now activity A is using some spare time, and because of this spare time, activity B is not being affected. एक्टिविटी बी अपने अर्ली स्टार्ट पर ही स्टार्ट हो रही है. एक्टिविटी ए ने स्पेयर टाइम यूज़ किया है, उसके बाद भी एक्टिविटी बी के अर्ली स्टार्ट टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो जो फ्री टाइम एक्टिविटी ए ने यूज़ किया है वो उसके लिए फ्री फ्लोट कहलाएगा. ओके, नाउ हाउ टू कैलकुलेट फ्री फ्लोट? ESJ minus ESI minus DIJ. Okay, next is independent float. The amount of time by which the start of an activity can be delayed without affecting the earliest start time of any immediate successor activity, assuming that the preceding activity has finished at its latest finish time. Now, what is independent float? Suppose there are three activities A, B and C. B activity is in between A and C. So first A activity will complete, then B and then C. Now B activity has used some spare time. Now because of the spare time, there is no effect on activity C. Activity C is going to start on its earliest, and activity A is going to finish on its latest. इसका मतलब activity B के एक्स्ट्रा टाइम यूज़ करने के बावजूद एक्टिविटी सी अपने अर्लीस्ट स्टार्ट पे स्टार्ट हो गई है,
अर्लीस्ट टाइम पे स्टार्ट हो गई है और एक्टिविटी ए ने अपने लेटेस्ट पे कंप्लीट किया। लेटेस्ट मतलब मैक्सिमम वो जितना टाइम यूज़ कर सकती थी पूरा यूज़ करने के बाद ही ख़त्म हुई है। तो जो एक्टिविटी बी है उसने जो एक्स्ट्रा टाइम यूज़ किया उस एक्स्ट्रा टाइम को हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट फ्लोट। सो इंडिपेंडेंट फ्लोट्स क्या होते हैं, किसी भी एक्टिविटी का ऐसा स्पेयर टाइम जिसको यूज़ करने से आगे और पीछे दोनों एक्टिविटीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, उसे हम इंडिपेंडेंट फ्लोट कहते हैं। हाउ टू कैलकुलेट इंडिपेंडेंट फ्लोट? ES wait ESJ minus LFI minus DIJ. So I have taken one example to explain you. This is the network of the question which I explained you in my last video. Okay. So we have made a network. We have find the critical path. We have find the earliest start time and latest completion time. As you all know, I have explained earlier. जहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट होती है उसे हम आई से डिनोट करते हैं उस नोट को, और जहाँ पे ख़त्म होती है उस नोट को हम जे से डिनोट करते हैं। ये एरो शो करता है एक्टिविटी को। DIJ स्टैंड्स फॉर ड्यूरेशन। एंड जो आई पर जो हमने एक ब्लॉक बनाया उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम दोनों ब्लॉक्स को। नीचे वाला ब्लॉक डिनोट करता है ESI, ऊपर वाला LC, लेटेस्ट कंप्लीशन, अर्लीस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट कंप्लीशन। Now first of all we are going to calculate the total floats. What was the formula for total floats? LCJ minus ESI minus DIJ. Okay. सबसे पहले हमें देखना है, अब देखो मैंने क्वेश्चन में क्या किया है, I have written all the activities A to N. I have written all the activities from A to N. Now I have given names. Activity A के लिए देखिए हमने क्या लिखा है 1 to 2. नेटवर्क में एक्टिविटी ए के लिए हम क्या लिखेंगे 1 to 2, एक्टिविटी बी के लिए 1 to 3, एक्टिविटी सी के लिए 1 to 4, फॉर डी 3 to 4, ई 2 to 5, एफ 2 to 6 एंड लाइकवाइज। ठीक है, तो स्टार्टिंग नोड और एंड नोड से डिनोट कर रहे हैं हम। अब सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट द LCJ। LCJ कैलकुलेट तो हमने किया हुआ है, यहाँ पे कैसे लिखना है। अब ये जो एक्टिविटी ए है इसके लिए आई क्या है 1 एंड जे क्या है 2। ओके, अब हमें चाहिए जे, तो हम जे पे देखेंगे, जे मतलब 2 पे देखेंगे। 2 पे भी हमको क्या चाहिए LC, तो 2 पे LC चाहिए मतलब ऊपर वाला चाहिए हमें। ओके, तो ये जो एक्टिविटी 1 to 2 है ये 2J हो गया। जे में हमें कौन सा चाहिए LCJ, तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 8, तो 8 विल बी LCJ फॉर एक्टिविटी ए। फॉर activity B 1 to 3, so 1 is I and J is 3, so this is J। J पे ऊपर देखिए आप क्या लिखा हुआ है 5, so I will write 5 here। Next 1 to 4, 1 to 4, so 1 is I, 4 is J, J 4 पे आप ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है 10, so I will write 10 here। अब नेक्स्ट 3 to 4 के लिए भी 3 is I and 4 is J, J के ऊपर क्या लिखा हुआ है मतलब 4 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 10, so I will write it here। नेक्स्ट is 2 to 5, sorry 2 to 5, so 2 is I and J is 5, तो आप देखो 5 इस पे ऊपर लिखा हुआ है 15। तो इस तरीके से हमने सारे LCJ लिख दिए हैं। ऐसे आप देखोगे 2 to 6, 6 पे ऊपर लिखा हुआ है 16, 3 to 6, 6 पे ऊपर लिखा हुआ है 16, जहाँ पे भी एंडिंग में 6 है वहाँ सब पे 16 लिखना है। एंडिंग में 7 है, 7 पे एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है, 7 पे ऊपर लिखा है 16। अब जो एक्टिविटी 8 पे फिनिश हो रही है LCJ इज 20, 9 पे फिनिश हो रही होगी उसके लिए LCJ इज 28। इस तरीके से हमने सबसे पहले LCJ लिख दिए हैं, ये सारे आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इज ESI। अब ESI क्या होता है, देखो एक्टिविटी जहाँ से स्टार्ट होती है I, उधर स्टार्टिंग नोड पे नीचे वाले ब्लॉक में जो लिखा होगा वो होगा ESI। तो अब एक्टिविटी 1, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 तीनों ही 1 से स्टार्ट हो रही है, तो तीनों का I 1 है, तो 1 पे जाके देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। 1 पे नीचे क्या लिखा हुआ है 0, तो ESI क्या हो गया 0, so I have written 0 here। नेक्स्ट इज 3 to 4, 3 to 4 में I क्या है 3,
तो 3 पे आप देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है 5, सो आई विल राइट 5 हियर. नेक्स्ट इज 2 to 5 एंड 2 to 6, दोनों में ये आई क्या है 2, तो आप चेक करिए 2 पे नीचे क्या लिखा हुआ है, इट इज रिटन 2, सो आई विल राइट 2, दोनों पे हमने 2 लिख दिया है. नेक्स्ट इज 3 to 6, 3 to 6 आप देखिए 3 पे नीचे क्या लिखा हुआ है, it is written 5, so I will take 5. Likewise you can see for 4 to 6 and 4 to 7 starting nodes are 4, so on 4 you can see here it is written 10, so I will write 10 for both this. Next is 5 to 8, 5 पे हम देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है, it is written 9, so I will write 9 here. Now I think it's clear to all of you. You can write it by yourself. Next is Dij. What is Dij? It is duration. This part will be given in the question. And you can see I have written this duration in network also. Activity A, duration is 2. So this is 2 here. For activity B, duration is 5. So I will write 5. For activity C, duration is 4. Okay, likewise for D you can see 5, for G3, F3, H6, I2, M12 and so on. So now I have put all the values, now I will do the calculations. 8 minus 2 is 6. So the total float for to activity A is 6 months or 6 days, whatever given in the question. Suppose the data is given in days. So activity A has 6 पेयर एक्स्ट्रा डेज, जिनको अगर वो यूज़ करती भी है तो भी हमारा प्रोजेक्ट अपनी कंप्लीशन डेट पे कंप्लीट हो जाएगा, एक्सटेंड नहीं होगा. लेकिन जो एक्टिविटी बी है उसके पास टोटल फ्लोट 0 है. इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी बी एक तरीके की क्रिटिकल एक्टिविटी है, इसके पास कोई एक्स्ट्रा डेज नहीं है. अगर इसने एक भी दिन एक्स्ट्रा लिया तो हमारा प्रोजेक्ट अपनी कंप्लीशन डेट पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा और वो एक्सटेंड हो जाएगा. ओके, likewise you can see activity C has 6 extra days, E has 6 extra days, and you can see F has 11 extra days. So this is how we calculate total float. The next is free float. For free float you can see I have written the formula ESJ minus ESI minus DIJ. Okay, now it is very clear what is ESJ and what is ESI. ESJ क्या होगा, J means ending node जैसे एक्टिविटी A की बात करेंगे तो I is 1, J is 2. तो ESJ के लिए हम 2 देखेंगे और 2 पे क्या देखेंगे, नीचे के ऊपर, नीचे हम लिखते हैं ES, ऊपर लिखते हैं LC, तो हमें चाहिए ES तो हम नीचे देखेंगे. तो 2 पे नीचे जाकर देखते हैं क्या लिखा हुआ है. वी आर गोइंग टू द नेटवर्क नाउ. 2 पे देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है 2. सो ESJ is 2. ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखिए ESI क्या होगा, I है मतलब पहला नोड 1 पे नीचे वाला. ओके, 1 पे नीचे देखते हैं क्या लिखा है, हमेशा 0 ही होता है. एक बार फिर से देख लेते हैं, 1 पे नीचे क्या है 0. सो इट इज रिटन 0 here and you know the duration. नेटवर्क में ऑलरेडी मेंशन है, एक्टिविटी A के पास में मैंने ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है 2. So 2 minus 2 is 0. तो एक्टिविटी A के पास कोई फ्री फ्लोट नहीं है. नाउ फॉर एक्टिविटी B 1 2 3, तो जो 1 पे नीचे लिखा होगा वो क्या होगा ESI और 3 पे जो नीचे लिखा होगा वो क्या होगा ESJ. तो पहले हम 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है चेक कर लेते हैं. 3 पे नीचे लिखा हुआ है 5 और 1 पे नीचे लिखा हुआ है 0. तो 5 minus 0 and 5 minus 0 and the duration is also 5. So 5 minus 0 minus 5 is 0. Next 1 to 4. 4 पे देखेंगे नीचे क्या लिखा हुआ है, that will be your ESJ. 4 पे नीचे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, it's 10. So 10 minus 0 minus 4, this will be 6. 10 minus 4 minus 0 minus 4 is 6. ऐसे हम देखते हैं 3 to 4. अब ऊपर चल के देखते हैं 3 to 4.
3 to 4 पे आप देखो ESJ क्या है 10, ESI क्या है 5. So 10 minus 5 is 0. तो एक्टिविटी 3 to 4 के पास भी फ्री फ्लोट 0 है. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट अपन ये चेक करते हैं. चेक दिस 2 to 6. ओके, 2 to 6. यू कैन सी 2 to 6. 2 to 6 के लिए ESJ क्या है 16 एंड ESI क्या है 2. So 16 minus 2 minus duration, that is 3. So 16 minus 5 is 11. So 2 to 6 have 11 days of free float. Okay.